Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا درس نمبر 2 شروع کریں گے. پچھلے درس میں ہم نے تجوید کی اہمیت کو جانا، تجوید پڑھنا یا تجوید جاننا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور تجوید نہ جاننے سے قرآن عظیم کے پڑھنے میں، قرآن عظیم کے تلفظ کو ادا کرنے میں جو غلطیاں ہوتی ہے، جن کو ہم لحن کہتے ہیں، لحن جلی، لحن خفی، اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا. ہم نے سمجھا کہ تجوید کا جاننا ہر ایک مسلمان پر بقدر ضرورت فرض عین ہے، اور ایک علاقے میں ایک قاری کا ہونا جو تجوید کا ماہر ہو، یہ فرض کفایہ ہے. اور تجوید کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تجوید میں اصل میں ہمیں 2 چیزوں کا پڑھنا ضروری ہے. پہلا کہ ہمیں مخارج کا علم ہونا چاہیے، یعنی کون سا حرف کہاں سے ادا ہو، اور دوسرا ہمیں صفات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سے حرف پہ کون سی صفت ادا ہوتی ہے. اور ہر ایک حرف میں ہم نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ صفات ہوتے ہیں، جن کو ہم آئندہ آنے والے کلاسز میں پڑھیں گے. تو آج کا جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ مخارج پہ ہوگا. مخارج کس کو کہتے ہیں اور مخارج کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ ہم نے تجوید کو شروع کیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو عربی میں، یعنی عربک علم میں یا عربک لینگویج میں جو حروف الہجا یا الفابیٹس کی جو تعداد ہے وہ یا تو 28 ہے یا 29 ہے. یعنی الف اور حمزہ کو اگر ہم ایک مانیں گے تو حروف الہجا کی تعداد 28 ہوگی. اگر ہم الف اور حمزہ کو الگ الگ مانیں گے تو حروف الہجا یعنی الفابیٹس کی جو تعداد ہے عربک میں وہ 29 ہوگی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مخارج. انگریزی میں مخارج کو ہم کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹس، یعنی منہ کا وہ حصہ ہمارے ہونٹ سے لے کے ہمارے گلے کے بیچ میں جو حصہ ہے، اس میں سے کون سے حصے میں کون سا حرف ادا ہوتا ہے. دیکھیں، اردو میں اور عربی میں جو حروف الہجا ہے تقریباً سیم ہے، بٹ اردو میں ہم توجہ نہیں دیتے کیونکہ اردو میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر عربک میں کوئی بھی حرف اپنے مقررہ مخرج سے ہی ادا ہوگا، یعنی ایک پرٹیکولر لوکیشن ہوگا اس حرف کا جہاں سے وہ ادا ہو. اس پرٹیکولر لوکیشن کو جہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مخرج، اور مخارج جو ہے اسی مخرج کی جمع ہے. انگلش میں مخارج کو ہم کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹس، یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، مخارج کی جو صفت ہم بیان کریں گے، یعنی مخارج کا جو تعارف ہے وہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرف جو ہے یہ جب اندر سے باہر کی طرف آتا ہے، ہماری آواز جب ہمارے گلے سے باہر کی طرف آتی ہے، اس آواز کو ہم مختلف اپنے منہ کے حصوں سے ادا کرتے ہیں، اور جہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے زبان میں، عربی کی زبان میں مخرج کہتے ہیں. اور مخرج چونکہ ہمارے پاس ایک نہیں بہت سارے ہیں، اسی لیے ہم اس کو مخارج کہتے ہیں، یعنی مخارج جو ہے مخرج کی جمع ہے. تو کسی بھی حرف کا ایکچول مخرج جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس حرف کو ہم ساکن بناتے ہیں اور اس سے پہلے حمزہ پہ زبر لاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جیم کا مخرج کیا ہے، یعنی جیم ادا کہاں سے ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم جیم پہ جزم لائیں گے،
सुकून लाएंगे। उससे पहले अलिफ के जो ऊपर ज़बर आप देख रहे हैं, अलिफ के ऊपर ज़बर नहीं होती, इसको हम हमज़ा कहेंगे, क्योंकि जब भी आप अलिफ को देखेंगे वो खाली होगा। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश देखेंगे तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा कहलाएगा। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, जीम पे सुकून है, जज़म है, इसको हम मिला के पढ़ेंगे आज। आज आप देखिए आखिर में जो जीम जहां से आप पे अदा हो रहा है, कैसे अदा हो रहा है कि हमारे पास जो जबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर के तालु की तरफ उठ रहा है। इसी तरह हमारे पास है आम। अगर मीम का मखरज आपको जानना है तो मीम को हम साकिन बनाएंगे, उससे पहले हमजा पे जबर लाएंगे। आम यानी मीम अदा करते वक्त हमारे होंठ आपस में मिल रहे। इसी तरह कौफ, आको, कौफ अदा करते वक्त जो जबान का जो आखिर वाला हिस्सा है तालु, इसको हम ऊपर की तरफ मिलाते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी हरफ का मखरज जानने के लिए उसको हम साकिन बनाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे मुंह में जो ये हरूफ अदा होते हैं जिनको हम मखारिज कहते हैं, उनकी लोकेशन कितनी है? तो इसका जवाब है असल में हमारे मुंह में गले से लेके हमारे होंठों तक हमारे पास 5 हिस्से हैं। यानी हमारे पास 5 लोकेशंस है जहां से हमारे हरूफ अदा होते हैं। सबसे पहला लोकेशन जहां से हर्फ अदा होता है, इसको हम कहते हैं अल हलक। अल हलक, हलक अरबी में कहते हैं गले को। ठीक है, हमारा जो थ्रोट है, हमारा जो गला है, इसको हम अरबी में कहते हैं अल हलक। हलक यानी थ्रोट, ये एक हमारा यानी हिस्सा है जहां से हरूफ अदा होते हैं। दूसरा है अल लिसान, हमारी जुबान, यहां से भी कुछ हरूफ अदा होते हैं। तीसरा है अशफतान। अशफतान यानी हमारे जो 2 होंठ है, इनको मिलाने से भी कुछ हरूफ अदा होते हैं। चौथा जो एरिया है जहां से हरूफ अदा होते हैं, वो है अल जाउफ। जाउफ कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को। यानी जब हम खामोश रहते हैं, आप देखेंगे कि हमारे गले से लेके हमारे मुंह के बीच में खाली हिस्सा खला होती है, एक इंटरनल स्पेस होती है। इसको हम अरबी में अल जाउफ कहते हैं। और 5वां जो हिस्सा है जहां से हरूफ अदा होते हैं, वो है अल खैशूम। अल खैशूम का मतलब होता है नाक का बांसा। यानी जो हमारे जो ये नाक है ना, नाक के अंदर जो स्पेस होती है, इसको हम नोज भी कह सकते हैं, नाक का बांसा भी कह सकते हैं। यहां से भी कुछ हरूफ अदा होते हैं। यानी एक तजवीद जानने वाले को पता होना चाहिए कि मेरे जो हरूफ अदा करने के जो इलाके हैं वो असल में 5 है। कुछ हरूफ हलक यानी गले से अदा होते हैं, कुछ हरूफ अल लिसान वल असनान यानी जुबान और दांतों के बीच में से अदा होते हैं, कुछ हरूफ अशफतान यानी होंठों से अदा होते हैं, कुछ हरूफ अल जाउफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, और कुछ हरूफ अल खैशूम यानी नाक के बांसे में से, ये जो नाक का जो खाली हिस्सा अंदर की तरफ होता है, यहां से अदा होते हैं। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि जब भी हम अरबिक पढ़ते हैं या किसी कारी की जो तजवीज़ सुनते हैं, क़रअत सुनते हैं, हम देखते हैं कि उसकी क़रअत में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव होते हैं। कभी उसकी आवाज़ नाक में चली जाती है, कभी वो हलक से यानी गले से अदा करता है, कभी अपने मुंह के जुबान के ऊपर नीचे से अदा हरूफ करता है। ये एक्चुअली उसको पता है कि मेरे पास मेरे मुंह में मेरे ये जो हिस्से हैं, मखारिज के हिस्से हैं, इसमें मोटे मोटे मेरे 5 एरियाज है, 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है जहां से मेरे हरूफ अदा होते हैं। अब हम एक एक करके इनको उठाएंगे और हम देखेंगे कि किस हिस्से से कौन सा हरफ अदा होता है, फिर हम उसकी मशक करेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, हमारा जो पहला हिस्सा रहेगा इस प्रोग्राम का, उसमें हम तजवीज़ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम प्रैक्टिस भी करें। तो जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हमारे पास एक्चुअली 5 मेजर एरियाज है हमारे मुंह में, हमारे होंठों से लेके हमारे गले तक। सबसे पहले अल हलक यानी ये थ्रोट का हिस्सा है। इस हलक में हमारे पास 3 मखारिज है। एक ऊपर वाला हलक,
यानी जहां से हमारा मुंह खत्म होके हमारा गला शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं अदना हलक। दूसरा है मिडल ऑफ द थ्रोट, जिसको हम कहते हैं वस्त हलक। और तीसरा है गले का वो हिस्सा जो हमारे चेस्ट की तरफ, हमारे फेफड़ों की तरफ जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं अक्सा हलक। तजवीद के जो अलग अलग हरूफ कहाँ से अदा होते हैं, इनको मैं भी आपके सामने बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास 5 मेजर एरियाज है। उन 5 मेजर एरियाज में भी हमारे पास सब एरियाज है, सब लोकेशन है। तो हलक में हमारे पास 3 लोकेशन है। एक है अदना, यानी वो वाला हिस्सा जो मुंह के जानिब से शुरू होता है। दूसरा है मिडल ऑफ द थ्रोट, बीच वाला हिस्सा। तीसरा है जो हलक जो हमारे सीने की तरफ जुड़ा हुआ है, ये हमारा तीसरा हिस्सा है गले का। इसी तरह जब हम लिसान की बात करेंगे, जबान की बात करेंगे, जबान के साथ हमारे दांतों की बात करेंगे, जबान मुख्तलिफ दांतों के साथ जब मिलती है तो हमारे पास तकरीबन 10 मखारिज है, जिनसे 18 हरूफ अदा होते हैं। हलक से हमारे पास 6 हरूफ अदा होते हैं। लिसान और जबान और दांतों के बीच में से हमारे पास 18 हरूफ अदा होते हैं, जबकि 10 मखारिज है इसमें। शफतान यानी होंठों से हमारे पास 2 मखारिज है, जिनसे 4 हरूफ अदा होते हैं। ठीक है। इसके बाद जाउफ जो मुंह का खाली हिस्सा होता है, इसमें एक्चुअली 3 हरूफ अदा होते हैं स्पेशल कंडीशन में, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो 5वां एरिया है आर्टिकुलेशन पॉइंट्स का, अल खैशूम, ये नाक का बासा है, इसमें 2 हरूफ अदा होते हैं, जबकि वो खास कंडीशन में होते हैं। अब मैं फिलहाल आपको अभी एक डेफिनेशन दे रहा हूं ताकि आपके पास नोट्स भी बने। हम इन चीजों को एक एक करके उठाएंगे और मिसालों के जरिए आपके सामने समझाएंगे। अभी आप सिर्फ तवज्जो रखिए कि मैं आपके सामने जो बता रहा हूं कि हमारे पास 5 एरियाज है जहां से मोटे मोटे हरूफ अब अदा होते हैं, और हर एरिया में फिर सब एरियाज हैं जिनमें जो हरूफ है वो अलग अलग तरीके से अदा होते हैं। ये है हमारा, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे पास इन 5 एरियाज का जो मेजर एरियाज है आर्टिकुलेशन पॉइंट्स के, मखारिज के, उनको बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हलक, मैंने आपको बताया गले का हिस्सा जिसमें 3 मखारिज है और 6 हरूफ अदा होते हैं। अल लिसान यानी हमारी जुबान, वल असनान हमारे दांत, जुबान और दांतों के मिलाप से हमारे पास 10 मखारिज है, जिनसे 18 हरूफ अदा होते हैं। 18 + 6 हमारे पास 24 हो गए। अशफतान हमारे होंठ, इसमें 2 मखारिज है, जबकि 4 हरूफ इससे अदा होते हैं। और अब देखिए 4 मिला के ये 28 हो गए हमारे पास। उसके बाद अल जाउफ, इसमें से हमारे पास खास कंडीशन में 3 हरूफ अदा होते हैं, और अलिफ जो है वो भी अल जाउफ से अदा होते हैं। तो इस तरह 29 हरूफ हमारे आ गए। और अल खैशूम, ये नाक के बासे को कहते हैं, इसमें नून और मीम एक स्पेशल कंडीशन में अदा होता है, जिसको हम अपनी जबान में गुन्ना कहते हैं। गैन, नून और हा, ये गुना नहीं है, ये गुन्ना है। गुन्ना यानी नाक के बासे में आवाज को रखना। जैसे हम आपने देखा जो कारी हजरात है वो पढ़ते हैं इन्ना, अन्ना, अम्मा, ये जो नाक में वो आवाज ले जाते हैं, इसको हम कहते हैं गुन्ना। और नाक में आवाज को लेना, ये एक्चुअली अल खैशूम का हिस्सा है जहां पर हम आवाज रखते हैं। इसको इंशाल्लाह हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है यानी मखारिज के ताल्लुक से, इसको हम सबसे पहले हम उठाएंगे अपने गले को, जो हमारा हलक है। देखिए, उर्दू जानने वाले अक्सर और बेशतर इन 6 हरूफ में गलती करते हैं। याद रखिएगा, अक्सर और बेशतर हमारे जो उर्दू दान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले, बाकी जो मुंह के हरूफ तो अच्छी तरह से अदा करते हैं, बट इन 6 हरूफ में जिनको हम हरूफ अल हलकी या अल हलक वाले हरूफ कहते हैं, इनमें गलती करते हैं। क्योंकि अरबिक में हलक पे काफी जोर दिया गया है, जबकि उर्दू में हम इन पे जोर नहीं देते। और याद रखिएगा कि अगर हमने एक हरफ के बजाय दूसरे हरफ को अदा किया तो ये लहनी जली कहलाता है, यह आदमी को कुफर तक पहुंचाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले हरूफ अल हलकी या अल हलक वाले थ्रोट वाले हरूफ का जानना जरूरी है।
जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, ये जो हमारा गले वाला हिस्सा है, इसमें एक्चुअली 3 सब हिस्से हैं, यानी 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है। एक हिस्सा जिसको अदनल हलक या अदनाए हलक कहते हैं, ये टॉप ऑफ द थ्रोट है, यानी ये वो हिस्सा है मुंह के बाद जब गला शुरू होता है उस पहले हिस्से को कहते हैं अदनल हलक या अदनाए हलक, इंग्लिश में कहेंगे टॉप ऑफ द थ्रोट। इससे हमारे पास 2 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन सा हरफ? गईन खा, गईन खा। अब देखिए, जब मैं पढ़ रहा हूं ना, थोड़ी सी खराश हो रही है, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही होगी। तो गईन और खा पढ़ते वक्त हमारे पास थोड़ी खराश होनी चाहिए, क्योंकि यहां से जब अदा होते हैं हरूफ तो थोड़ी सी खराश होती है, खराश। गईन खा, गईन खा। और ये कहां से अदा होते हैं? अदनल हल्क, टॉप ऑफ द थ्रोट, यानी पहले वाले हिस्से से। हमारा जो थ्रोट का पहला हिस्सा है जो हमारे मुंह से जुड़ा हुआ है, यहां से 2 हरूफ होते हैं अदा, और इनका जो मखरज है अदनल हलक या अदनाए हलक। हलक का पहला हिस्सा ये मखरज है, इनसे 2 हरूफ अदा होते हैं, गईन और खा। उसके बाद इस गले का जो बीच वाला हिस्सा है जिसको मिडल ऑफ द थ्रोट कहते हैं, या अरबिक में वसतुल हलक, वसतुल हलक या दरमियानी हिस्सा, इससे हमारे पास 2 हरूफ अदा होते हैं। और इन 2 हरूफ को अदा करते वक्त हमारे लोग, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो है, उनके अंदर बड़ी दिक्कत आती है, पहले पहले बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इनको पढ़ने में गले का बीच वाला हिस्सा, मिडल ऑफ द थ्रोट को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ होता है। कैसे इसको अदा करेंगे, इसको याद रखिएगा। इसको पढ़ते हैं आइन, आइन। देखिए, गले का बीच वाला हिस्सा आइन और हा, हा, गोल हा नहीं, ये हा है, हलवा, हा, ठीक है। हा, आप देख रहे हैं मैं गले के बीच में अदा कर रहा हूं, इसीलिए इसकी आवाज थोड़ी सी क्लियर होके निकल रही है। हा और आइन, ठीक है, आइन और हा, याद रखिएगा। ये 2 हरूफ, इन पे काफी मेहनत करनी होती है, क्योंकि हमारे बरसगीर के लोग जो उर्दू जानने वाले होते हैं उनमें इस चीज में गलती पाई जाती है। तो लिहाजा ख्याल रखिएगा, आइन और हा, इसमें हमें कोशिश करनी है अदा करने की। धीरे धीरे करके आपको अदा हो जाएगा जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद गले का जो तीसरा हिस्सा है जो हमारे सीने की जानिब है, हमारी छाती की जानिब है, इसको कहते हैं अक्सल हलक, अक्सल हलक या अक्साए हलक। अक्सल हलक या अक्साए हलक, जिसको बॉटम ऑफ द थ्रोट भी कहते हैं, इससे हमारे पास 2 हरूफ अदा होते हैं, हमजा हा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, हमजा हा, हमजा हा। देखिए, इस गोल हा को, जिसको हम उर्दू में 2 चश्म कहते हैं, इस हा और इस हा में फर्क होना चाहिए। इस हा, हुदा, हुदा, बिल्कुल आपने सीधे पढ़ा। इसके बरक्स हा, हा, अर्रहमान, अर्रह, अर्रहमान, हा। हम अक्सर पढ़ते हैं अर्रहमान, उस हा को हम इस हा की तरफ पढ़ते हैं, और इससे तर्जुमा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं और हमारी जो नमाज में जरूरी जो आयत पढ़नी होती है वो है, जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं हम, इसमें क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब पहली आयत में हा भी आ रहा है और आलमीन में आइन भी आ रहा है। अगर हम अल्हम्दु के बजाय खुदा न खास्ता अल्हम्दु पढ़ेंगे तो तर्जुमा आसमान जमीन तब्दील हो जाएगा। अल्हम्दु का यानी हा की तरफ से ये वाला हा, जिसको हम हलवा वाला हा कहते हैं, हमदु, इसका तर्जुमा होता है तमाम तारीफें। जबकि अलहम्दु गोल तरीके से अगर गोल हा पढ़ेंगे, अलहम्दु का मतलब होता है नाउज़ु बिल्लाह, तमाम बकवासात, तमाम फजूलियात, तमाम बेकार चीजें। अब अंदाजा करें, हम पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें हैं रब्बुल आलमीन के लिए, और खुदा ना खास्ता अगर हा के बजाय हमने गोल हा पढ़ा तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए ये लहनी जली कहलाता है।
تو इन 6 हरूफ पे आपको आज मेहनत करनी है। मैं मिसालें कुछ दूंगा, इन मिसालों को आप अपने पास से दोहरा सकते हैं माइक को ऑफ रख के, ताकि आपके पास प्रैक्टिस हो जाए। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, फिर से एक बार, अक्सल हलक, गोल हा और हमजा अदा होता है। इसको पढ़ते वक्त बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट यूज होता है, बिल्कुल आवाज नीचे से ऊपर की तरफ आराम से आती है। हमजा हा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, कोई ज्यादा इसको आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल नरम तरीके से अदा करना है हमजा और हा। मिसाल के तौर पर अगर हम मुफरदात की मिसाल देंगे, मुफरदात मतलब सिंगल अल्फाबेट, और मुरक्कबात मतलब कंपाउंड यानी वर्ड्स। अगर हम जबर की मिसाल देंगे, हमजा के ऊपर जबर आएगी, पढ़ेंगे आ, सिंपल आ, लंबा नहीं करना क्योंकि जबर है। आ ई ऊ, नॉर्मल तरीके से आ ई ऊ। मुरक्कबात में यस आलू, यस आलू, सुईला, युनब्बिउहुम, सिंपल, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, कोई ज्यादा खिंचाव नहीं, कोई ज्यादा इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसी तरह याद रखिएगा, जब हमजा के ऊपर जज्म होता है, जज्म मतलब सुकून, जैसे आप देख रहे हैं छोटी सी दाल, तो हमजा अदा करते वक्त झटका होता है। झटका का मतलब ये होता है आवाज को आप रोक देते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है फातू, मगर आप देख रहे हैं हमजा के ऊपर जज्म है। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? फ तू, फ तू, फ पढ़ते वक्त थोड़ा सा देरी, और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट अदा करना, इसको कहते हैं झटका करना। झटका सिर्फ हमजा के ऊपर होता है जब हमजा के ऊपर जज्म हो। ये आप याद रखिएगा, जब भी आप हमजा के ऊपर जज्म देखेंगे, जज्म को हम सुकून भी कहते हैं, तो इस पे झटका होता है। कैसे पढ़ेंगे? फ तू, फ तू। इसी तरह बी समा, बी समा, बी, जैसे मैं रुक रहा हूं ना, इसको हम झटका कहते हैं। इसके बाद यू मीनूना, कितनी बार कुरान मजीद में यूज हुआ है? यू मीनूना। याद रखिएगा यू मीनूना नहीं है, हालांकि वाव लिखा हुआ है, मगर वाव को अदा नहीं करना। अब कोई कहेगा फिर वाव की क्या जरूरत है? इसको हम ग्रामर में पढ़ेंगे, वाव की क्या जरूरत रहती है, हमजा क्यों हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते। इसका एक लिखने का तलफ़ुज़ तरीका है, हालांकि उसको पढ़ा नहीं जाता। जैसे इंग्लिश में हम नॉलेज लिखते हैं, हालांकि नॉलेज को के से लिखते हैं, पढ़ते मगर एन से। इसी तरह अरबिक में कुछ हरूफ लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते, मगर उनकी एक वैल्यू है, क्या है, किस तरह है, इसको हम अरबिक ग्रामर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जैसा अभी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं हमजा की, और मैं आपको बता रहा हूं कि हमजा को नॉर्मल तरीके से अदा करना है। सिर्फ याद रखना है कि हमजा पे जब जज्म हो, सुकून हो, तो इस पे झटका करना है। झटके का मतलब होता है आवाज को रोकना, ठीक है। इसके बाद अब आप हमजा के बाद हा की मिसाल, हा का जो गोल, हा का जो मखरज है, वो भी अक्सल हलक है, यानी बॉटम ऑफ द थ्रोट है। इसको भी नॉर्मल तरीके से अदा करेंगे, जैसे हा, ही, हु, नॉर्मल, हा, ही, हु, हा, ही, हु, नॉर्मल तरीके से, जैसे हम यानी अपने लंग्स से जो आवाज बाहर निकालते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, हा, हा, ही, हु, ठीक है। इसी तरह अगर हम साकिन इसको बनाएंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु, साकिन आगे बढ़ेंगे, और अब बी हिम, मिन हुम, अगर साकिन बनाएंगे तो पढ़ेंगे तह तादू। जब हम साकिन उस हरफ को बनाते हैं तो वो क्लियरली अदा होता है, हमें समझ में भी आता है कि हम उस हरफ को अदा कर रहे हैं। तह तादू, इहदिना, इहदिना, मुहतदीना। ये बिल्कुल आपके जो लंग्स से जो आवाज निकलती है वो बिल्कुल बाहर निकलती है। इहदिना, मुहतदीना, मुह, बिल्कुल आवाज को बिल्कुल आप अपने छाती से निकालते हैं, लंग्स से निकालते हैं बाहर की तरफ, कोई एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करनी है। और हुरूफुल हलकी में, इन्हें हलक वाले जो हुरूफ है, इनमें हमजा और हा का अदा करना सबसे आसान। उसके बाद जिसमें मेहनत करनी है इन हुरूफुल हलकी में, वो है आइन और हा। याद रखिएगा, आइन और हा मिडल ऑफ द थ्रोट, वस्त हलक से ये अदा होते हैं। मिसाल,
अनअमता अमता, इसी तरह इल्मुन, इसी तरह उलूमुन, आइन को मखरज वस्त हलक से अदा करना है। इसी तरह आ इ उ, जैसे हम पढ़ते हैं यअलमु इअलमु उअबुदुल्लाह उ, देखिए आइन का जो मखरज है ना थोड़ा सा टफ अदा करना है, बट मेहनत और मशक्कत से और कोशिश से ये अदा होगा। हा का भी यही मसला है, जैसे ह ही हु, गोल हा नहीं, गोल हा बिल्कुल अलग है। जैसे इसकी मिसाल मैंने पिछले स्लाइड में दी है। कैसे पढ़ेंगे? हमीदा, जैसे पढ़ते थे समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, हमीदा रहीमा, हुक्मुन हुक, हुक्मुन नहीं हुक्मुन हुक। इसी तरह अह अहमदु इह इहसानुन इहसानुन, इह हा को अदा करिए बीच वाले हलक से, इहसानुन। इसी तरह उह मुहसिनुन मुहसिनुन, ठीक है। ये आइन और हा की मिसाल है। इसके बाद हमारे पास दो और हुरूफ है, गईन और खा। गईन और खा अदना हलक प्रोनाउंस इसको किया जाता है टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट। इनको अदा करते वक्त थोड़ी सी खराश होती है। मिसाल गी गु, अब देखिए थोड़ी सी मैं खराश अदा कर रहा हूं। गफूरुन बुगिया गुरूबुन अग। अच्छा, आप याद रखिएगा कि गैन पे जब जज्म होना, अक्सर हम गलती करते हैं, इस पे हम कलकला करते हैं। कलकला का मतलब होता है इसको हम रिबाउंड करते हैं, हालांकि ये गलत है। जैसे हम कैसे पढ़ेंगे इसको? मगफिरतुन, गैन की आवाज को रोकिएगा। अक्सर जो हमारे पास गलतियां होती है वो हम पढ़ते हैं मगफिरतुन, मगफिरतुन बहुत गलत अदा करना है। कैसे पढ़ते हैं? मग, आवाज को रोकिए, मगफिरुन या मगफिरतुन। इसी तरह इस्तिग, इस्तिग नहीं, बहुत सारे गलती करते हैं, पढ़ते हैं इस्तिगफारुन, गलत। कैसे पढ़ना है? इस्तिगफारुन तुगयानुन तुग। गैन की आवाज अपने मखरज से नहीं हिलती, इसीलिए उसको पढ़ते वक्त आवाज को रोकते हैं। हाँ, कुछ हरूफ है जिनकी आवाज को हम रिबाउंड करते हैं, उसको हम सिफत में हम कलकला कहते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। खा को भी ऐसे अदा करेंगे, खा जबर खा, खी खु, खौफुन, आखिरु, आखिरु कितनी बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है? खुलुकुन, खुलुकुन, खा पे देखिए क्या पढ़ना है। इसी तरह अख इख उख, मखलूकुन इखवतुन इख इख खा, ठीक है। युखरिजु, मैं थोड़ा सा भी आपको एग्जेजरेट करके बता रहा हूं, वजह यह है कि मैं चाह रहा हूं कि आपके जो हलक का जो हिस्सा है वो यूज हो जाए। बाकी इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। आप देखेंगे कारी भी उसको बड़ा अच्छी तरह से अदा करते हैं, बट अभी मैं आपको एग्जेजरेट करके इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके गले के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहां से ये अदा हो जाए, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर था। अभी जो सूरतुल फातिहा मैंने लिखा है इसको मैं पढ़ूंगा, और इसमें आप तवज्जो रखिएगा उन हरूफ पे जिनको आज हमने अदा किया है, यानी हरूफुल हलक़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी हमारे पास 5 मिनट है। अगर किसी साथी को कोई सवाल है आज के लेक्चर के बारे में तो वो अपनी माइक खोल सकता है, या आप अपने चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की कि आज आपके दरमियान हुरूफुल हलक़ी को बयान किया जाए और ये बयान किया जाए कि मखारिज किसको कहते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह
दूसरे हरूफ को भी अदा करेंगे, क्या कि हमें पता चले कि कौन सा हरफ किस से अदा होता है। किसी साथी का अगर सवाल है तो वो माइक खोल सकता है और पूछ सकता है। गुजारिश ये है कि अपने वक्त पे आप ऐड हुआ करें। अभी हमने 10 बजे का टाइम रखा है, इंडियन टाइम जो कश्मीर का टाइम है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। उससे पहले पहले कोशिश कीजिएगा ताकि हमारे पास पूरा आधा घंटा 35 मिनट मिले। किसी साथी का कोई सवाल तो मैं वेलकम करूंगा। अभी हमारे पास 4 मिनट है। अगर आप कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहे आज के लेक्चर के बारे में तो मोस्ट वेलकम। तजवीद का जो मैंने आज लेक्चर दिया या अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। गुजारिश करूंगा कि आप किसी कारी को जिसकी क़िरात आपको अच्छी लगती है उसको आप पहले सामने रख के जो भी कुरान की जो सूरतें हैं या आयतें हैं उनको पढ़ा करें धीरे धीरे करके। चूंकि मैं आपको रूल्स भी बता रहा हूँ, इन रूल्स की रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। तो आप रूल्स को भी जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे उसको अदा कर रहे हैं। तो तजवीद जो है ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आज का हम जो लेक्चर है या सेशन है उसको हम अभी एंड करेंगे। बाकी साथियों से भी गुजारिश है कि वो भी अपने वक्त पे आया करें। और चूंकि हमारे दोनों ग्रुप्स को मिला के 150 के करीब हमारे पास इसमें तालिब इल्म और तलबा या स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बट अभी मैं जो देख रहा हूँ 10-12 से ही हमने शुरू किया है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको भी लाएं और आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा टाइम को भी एडजस्ट मोर करेंगे और अगर मुमकिन हो तो क्लासेस भी हम ज़्यादा लेंगे। बट अभी हमने शुरुआत में थोड़ा पेस को भी कम रखा है और जो क्लास का टाइमिंग है उसको भी आधा घंटा ही रखा है। आधा घंटा 35 मिनट, सवालात जो मिला के तकरीबन 40 मिनट का ये हमारा सेशन हो जाता है। चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इस नोट पे हम आज एंड करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे इस सफ़र को आसान बनाए। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेंगे, क्लासेस में अपने वक्त पे आएंगे और इस चीज़ को अगले आने वाले क्लास तक, क्योंकि सैटरडे में हमारा अब क्लास होगा, तब तक इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, अगर हम इसको साथ साथ थोड़ा लिख भी लेते ताकि हमें, क्योंकि उम्र भी हुई है, नहीं ताकि नहीं, हम थोड़ा सा। बहुत ज़रूरी है ये जो आपने मसला पूछा, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप जब मैं कोई चीज़ अर्ज करूं आप उसको कागज़ कलम लेके उसको लिख सकते हैं, वो बेहतरीन ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सिर्फ स्लाइड देख के आप याद नहीं करेंगे। तो ये मोहतरम, अच्छी बात है जी। उसमें गुजारिश है कि मोहतरम आपका लेक्चर जो है वो बहुत मतलब तेजी के साथ बढ़ रहा है। कि ये आप थोड़ा तेज कह रहे हैं, यानी फास्ट कह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें लिखने का भी अगर साथ में मौका मिल जाए तो। चलिए ठीक है, इस चीज़ को मैं मद्देनजर रखूंगा। जो आगे वाला इंशाल्लाह लेक्चर होगा इसमें मैं आपको टाइम दूंगा और आप बीच में रोक के मुझे रोक भी सकते हैं कि हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं। और कोई भी सवाल हो ना, बीच में भी मुझे टोक सकते हैं या आप सवाल पूछ सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, इस तरह करना चाहता हूँ। आपकी जो सजेशन है ना, वैलिड सजेशन है। इंशाल्लाह इसको हम अगले वाले लेक्चर से शुरू करेंगे और इस वीडियो को भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। आप उसको फिर से दोबारा सुन के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैं कुछ दिनों के बाद अपनी जो बुक है ना उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।